Hello, my dear students. Here myself, Kaushal Thakkar, your science teacher, and Jai Mata Di to all of you. Welcome to our new video of science after a long time. uh, Today we are going to start our revision of practice sheet, and this is our part 1. And in this video we are going to discuss about very short question answers which are nearly 30 in number in your practice sheet. So without wasting our time, just we are going to start this video. So students, very short question answers. In this slide, a very small boy is there and science is written in the upward side. This is a very cute photo. When I had seen this photo, I thought that I have to put in my slide. It's a very cute photo, I think. So the first question, my dear students, what is germination? बेटा जर्मिनेशन क्या होता है? तो जर्मिनेशन किसी सीड के डेवलपमेंट को कहा जाता है. जैसे कि एक छोटा बच्चा कैसे एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है, वैसे ही बेटा एक छोटा सा सीड भी कभी जा कर के एक सीडलिंग बनता है, फिर एक प्लांट बनता है, फिर एक ट्री बनता है. तो हमें उतना बड़ा डेवलपमेंट नहीं देखना, बस सीड टू सीडलिंग. व्हेनेवर a seed develops into a seedling, that process is known as germination. So here your answer is germination is the process of development of a seed into a seedling. जब एक सीड सीडलिंग मतलब कि एक बेबी प्लांट आप बोल सकते हो, उसमें वो चेंज होता है. सीड जब सीडलिंग में चेंज हो जाता है तो उसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स. Now the second question is, give example of plant that reproduce by spores. Students, spores are the tiny spherical structures. Okay. और ये स्ट्रक्चर्स से रिप्रोडक्शन होता है. हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, हमने स्पोर फॉर्मेशन भी देखा था चैप्टर में. तो मैंने पूछा है कि आप सिर्फ उन प्लांट्स का एग्जाम्पल दे जो स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं. So just you have to memorize mushroom, ferns and mosses. Mushroom, ferns and mosses. These are 3 types of plants that can reproduce by spore formation, by spores. Okay students, spores are just generally a spherical structure in plant. एकदम छोटे से structures होते हैं गोल गोल. Okay. ये अगर आप क्लास में आते तो आई थिंक मैं कहीं ना कहीं से इसकी इंतज़ाम करके मैं आपको क्लास में ही दिखाता कि दीज आर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स. बट नेक्स्ट ईयर मैं आपका साइंस का टीचर रहा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, वो याद रहता है मुझे. नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीड्स? सीड कंटेंट्स मेनली 3 पार्ट्स. सीड्स के पास टोटल 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स. सीड कोट, सीड लीव्स एंड एम्ब्रायो. ओके, सीड contains mainly 3 parts. First is seed coat, seed leaves and embryo. Now student, the fourth question is define crop. So this is particularly a very important question, I think. So what is crop? How you can define crop? The plants that are grown and cultivated in one place on a large scale during a particular period. एक समय में जब बहुत बड़ी संख्या में किसी पर्टिकुलर प्लांट को कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है एक जगह में, तो हम उस प्लांट को क्रॉप कहते हैं स्टूडेंट्स. सो आवर फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आर completed and these 4 questions are based on the chapter number 1, growing plants, and these 4 questions I think are very easy, very easy for your examination. So only one line answer is there. I think you can learn it very easily. Okay, now 5th number question.
Okay, here the two friends are there in the picture. You can see these two friends are very best friends. I think so, but what is the reality we don't know. So the fifth question is, what is seed dispersal, students? Seed dispersal का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स सीड्स का स्प्रेड होना, एक जगह से चार पांच जगह छह जगह जितनी भी जगह सीड्स बस फैल जाए, फैलना। सीड्स जितना ज़्यादा फैलेंगे उतना अलग अलग जगह में प्लांट्स उगेंगे, प्लांट्स के बीच में डिस्टेंस होगा। सो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स, स्कैटरिंग मीन्स फैलना होता है बेटा। The process of scattering of seeds are called seed dispersal. Okay, so the sixth number question we are going to do now, name the factors on which germination of seeds depends. Name the factors. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सीड का जर्मिनेशन डिपेंड होता है। अभी हमने जर्मिनेशन के बारे में बात किया स्टूडेंट्स। जर्मिनेशन मैंने अभी बताया, द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग। सीड से सीडलिंग बनने तक का जो सफ़र होता है किसी प्लांट का, ठीक है, वो जर्मिनेशन कहलाता है। सीड में से प्ल्यूम्यूल निकलेंगे, रेडिकल निकलेगा, मीन्स शूट और रूट। ओके, सो क्या फैक्टर्स है स्टूडेंट्स जर्मिनेशन के? पहला फैक्टर है वाटर, फिर है वार्मथ मीन्स सनलाइट, और एयर। ये तीनों चीज जो है ना स्टूडेंट्स, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इनके बिना तो जर्मिनेशन संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, इट कांट हैपन। ओके, सो water, sunlight and air are the most important factors on which germination of seeds depends. Totally, truly, I am telling you, these questions are very easy about. Now the next question, how do water animals move in water? Means aquatic animals, you can write here aquatic animals. So all water animals swim by paddling and pushing back the water. They paddling in water. How we are paddling the cycle? Whenever we ride a bicycle, how we paddle? Just like that, the water animals also paddle in water. Okay, they paddle and trying to pushing the water backward and just put forward their body. इसके वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, वो पैडलिंग करते, पानी को पीछे की तरफ ढकेलने का प्रयास करते और खुद उस ढकेलने की वजह से वो आगे बढ़ते। ओके, सो इस तरीके से वाटर एनिमल जो है वो वाटर में मूव हो पाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चंस बिकॉज all just we have to write that all water animals swim by paddling and pushing the water backward, paddling and pushing back the water. That's the easy question, I think. Now the last question, how do insects move? I am telling you students, the picture I had selected for this slide is due to these questions, because this question is about insect and I had selected a picture of insect of two insects, they are best friends, I think. So due to this question I had selected this picture for this slide. Now how do insects move? Insects कैसे move करते हैं? तो हमने वैसे तो देखा हुआ है, लेकिन जनरली ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 legs. जनरली आई थिंक all insects are 6 legs, having 6 legs which are used for movement. वो अपने 6 पैरों का यूज करके स्टूडेंट्स मूवमेंट करते हैं. So we can say that all insects have 6 legs, they have 6 legs and which are used for movement and they are using their legs for the movement. Okay, so this slide is also over. Our first 8 questions are explained students. I think you are not having any problem, and if you have any problem, so we will come live about that. To solve your problem I will come live in Google Meet and then there we will solve all the problems. Okay, now very cute frogs are there. Just I'm just very happy to see this pic. Whenever I found it, I feel like just what they are. Oh, the frogs are looking very cute. And why I had taken a pick of frog, because there is a question number 11 which is what are amphibians. Amphibians and
A general example of amphibian is frog. That's why I had taken this pic. Okay. So first of all, we are going to explain question number 9. How does the body covering of a snail help it in protecting itself? You had seen any snail? जो बेटा बॉडी कवरिंग होता है जो स्नेल का, स्नेल देखे हो कभी, शायद देखे होंगे या कुछ लोग नहीं भी देखे होंगे। स्नेल की जो बॉडी कवरिंग होती है ना स्टूडेंट्स, उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है, उसको कैसे बचाती है बाहरी इन्वायरमेंट से, बाहरी वातावरण से उसको कैसे बचाती है। तो जब भी स्नेल सेंस करता है ना कोई डेंजर उसके अगल बगल, ऐसा लगे करे उसको कोई खतरा है, अगर उसके अगल बगल उसको कोई खतरा नजर आता है ना, वो अपना मुंडी जो है, जो हेड है, जो पाँव है, जो लेग्स है, जो हैंड्स है, सब कुछ अपने जो शेल है, उसका जो शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसका जो शेल होता है उसके अंदर वो अपने सारी चीजें अंदर डाल लेता है और सिर्फ वो हार्ड शेल बाहर रहता है उसके। ओके, इस तरीके से वो यूज करता है अपने बॉडी कवरिंग को, जो शेल है, और जब भी उसको डेंजर फील होता है वो अपनी मुंडी से लेके हाथ पाँव पूंछ सब अंदर खींच लेता है, सिर्फ शेल बच जाता है। तो स्टूडेंट्स, दैट इज द वे they use their body covering to help themselves. Okay, so now the 10th number question arises, that is what are carnivores, and give examples. We all know that what are carnivores. Flesh eating animals are they are. Flesh eating animals are called carnivores. An example, you all know that lion, tiger, okay, they are flesh eating animals, pure carnivores we can say that. Okay, so now the 11th number question, students, which we are waiting for, because according to this question I had selected this pic, because what are amphibians, and give example. Okay, amphibians are animals that live both on land and in water. Amphibians ऐसे जानवर होते हैं स्टूडेंट्स जो लैंड में भी होते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। इवन ह्यूमंस कैन नॉट डू दिस, हम पानी के अंदर नहीं रह सकते। Even so many animals cannot do as the amphibians can do. Okay, so amphibians can live on land or water both, दोनों जगहों पे रह सकते हैं ये। Okay, और इनका एग्जाम्पल फ्रॉग है। फ्रॉग is a general and is a great example for amphibians. Okay, now students, our 12th number question, what are rodents? Give example. Animals that have strong and long growing incisors and no canines. बेटा इंसीजर और कैनाइन, ये दो शब्द आ गए इस आंसर में। बहुतों को तो ये दो शब्द का मतलब भी नहीं पता होगा। मैं आपको बता दूं, बहुत शांति से सुनना क्या बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको कि इंसीजर एंड कैनाइन, ये जो दो शब्द है, दीज आर द टाइप्स ऑफ टीथ। दीज आर द टाइप्स ऑफ टीथ जो आपके सामने में आते हैं ना स्टूडेंट, सामने के जो दांत होते हैं बिल्कुल सामने के, ठीक है, उसे हम इंसीजर कहते हैं। और जस्ट उसके बगल में जो दांत होते हैं स्टूडेंट, राक्षसों को आपने देखा होगा, राक्षसों के साइड में दांत निकले होते हैं। राक्षस कभी आपने देखा है, यू हैव सीन अ डेमन, राक्षसों के दांत जो होते हैं ना साइड में, उनको कैनाइंस कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं उनको? कैनाइंस। और चूहों के आगे दांत देखा आपने, चूहों के छोटे छोटे दांत एकदम आगे होते हैं बेटा, वो इंसीजर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ टीथ। ओके, तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग इंसीजर्स हो और कैनाइन हो ही ना। कैनाइन जो टीथ, जो कैनाइन टीथ स्पेशली शेरों में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो शेर होते हैं, टाइगर, उसमें कैनाइन होते हैं, उनको काफ़ी यूज़ आता है। लेकिन हमारे रॉडेंट्स जो है उनके पास कैनाइन नहीं होते, सिर्फ सामने के दांत होते हैं, और काफ़ी लंबे और काफ़ी नुकीले दांत होते हैं, इंसीजर्स होते हैं उनके पास। और ये इसको ग्नॉइंग एनिमल्स भी कहा जाता है इनको। दीज ग्नॉइंग एनिमल्स आर रॉडेंट्स। एग्जाम्पल, जैसे ग्नॉइंग इसलिए कहा गया स्टूडेंट्स क्योंकि ये सारी चीज़ों को काट देते हैं, उनका दांत काफ़ी तेज़ होता है, सारी चीज़ों को काट देता है। आपको पता चल गया रॉडेंट्स कौन है? रैट, स्क्विरल मतलब चूहे, गिलहरी, ये सारी जो प्रजातियां हैं। रैबिट भी आप रॉडेंट में गिन सकते हो, रैबिट्स भी, ठीक है। तो ये सारी प्रजातियां रॉडेंट्स में आती है। रॉडेंट्स की बहुत सारी प्रजातियां, वैसे तो हम तो 2-3 ही जानते हैं फिलहाल।
बहुत सारी प्रजातियां हैं रॉडेंट्स, एक बहुत बड़ा एनिमल ग्रुप है, बट हम आगे चल के पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में आएगा. Now we had entered in our third chapter, I think, what are tendons. So students, tendons are strong fibers that connect bone to muscles. एक ऐसे फाइबर हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा जो हमारे शरीर में बोन और मसल्स को जोड़ कर रखता है. टेंडन जॉइन द बोन एंड मसल्स. दे आर फाइबर्स, दे आर अ टाइप ऑफ फाइबर्स. तो टेंडन आर स्ट्रॉन्ग फाइबर्स दैट कनेक्ट बोन टू मसल. मसल और बोन को जोड़ कर रखे वो टेंडन होता है स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट आर लिगामेंट्स? नाउ अब मैं आपको बता दूं, टेंडन लिगामेंट में बस इतना फर्क है स्टूडेंट. टेंडन जो है वो बोन और मसल को ज्वाइन करके रखता है, और लिगामेंट जो है वो बोन और बोन को ज्वाइन करके रखता है. बोन जॉइंट के बीच में लिगामेंट दिखेगा, और बोन मसल जॉइंट के बीच में आपको टेंडन दिखेगा. ओके, तो बोन्स आर हेल्ड एट द जॉइंट्स टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट. तो लिगामेंट इज अ स्ट्रॉन्ग टिश्यू एंड टेंडन इज अ स्ट्रॉन्ग फाइबर. ये थोड़ा ध्यान रखिएगा. जब भी टेंडन के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि टेंडन एक स्ट्रॉन्ग फाइबर है, और जब भी हम लिगामेंट्स के बारे में बात करेंगे तो लिगामेंट्स एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है. ओके, और टिश्यू और फाइबर के बीच में भी फर्क होता है, लेकिन स्टूडेंट्स ये फर्क आप हायर स्टैंडर्ड्स में ही समझ पाओगे. ओके, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम टू डिफरेंशिएट बिटवीन फाइबर एंड टिश्यू. ओके, सो okay, you have to simply understand that tendons join bone and muscle and ligament join bone and bone. Okay, two bones are joined by the ligament. Now what is joint? A joint is a point where two bones meet, two or more bones meet. दो या दो से अधिक हड्डियां जिस पॉइंट पे मिलती है स्टूडेंट्स, वो जॉइंट कहलाता है. Now 16th number question we can see. What is a hinge joint? Give one example. बेटा हिंग जॉइंट जो है ना, बिल्कुल आप अपने घर के अभी चले जाओ, अभी वीडियो देख रहे हो, अभी सुन रहे हो, अभी चले जाओ दरवाजे के पास, चले जाओ, दरवाजे को खोलो, दरवाजे को बंद करो, फटाफट करो, चलो. अब आप वो मूवमेंट देख लो. दरवाजे को खोल बंद करोगे अभी, तो जो मूवमेंट दरवाजा करेगा ना, पूरा दरवाजा तो एकदम 360 डिग्री एकदम गोल तो नहीं घूम जाएगा आपका. दरवाजा का एक लिमिटलेस क्या लिमिट होगा आपका मूवमेंट का, बिल्कुल होगा, लिमिट होगा. बिकॉज दरवाजे को जब आप बंद करोगे खोलोगे तो उसका बैक एंड फोर्थ जो मूवमेंट है बिल्कुल हिंग जॉइंट होता है स्टूडेंट्स. दरवाजे का मूवमेंट और हमारे बॉडी में जिस जगह हिंग जॉइंट है उस जगह का मूवमेंट बिल्कुल सेम होता है. हिंग जॉइंट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे पीछे, बस इतना ही मूवमेंट जो है वो हिंग जॉइंट आपको करने देता है. हिंग जॉइंट हमारे शरीर में हमारे एल्बो में, नी में, फिंगर्स में, टोज में, ये सारी जगहों पे हमारे इस तरह के जॉइंट्स है. तो हमारे एग्जांपल्स भी हो गए एल्बो, नी, फिंगर एंड टो. और हिंग जॉइंट ओनली अलाउज बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जस्ट लाइक अ डोर. ओके, now the 17th number question arises, students. What are voluntary muscles? We all know that what are voluntary muscles. I had explained that most of the muscles in our body are under our control. ज़्यादातर मसल्स हमारे बॉडी में हमारे कंट्रोल में होती हैं, और वही जो मसल्स हमारे कंट्रोल में हो स्टूडेंट्स, वही वॉल्यूंटरी मसल्स हैं. द मसल्स that are in our control are we call known as voluntary muscles. हमारे कंट्रोल में है. हमारे पाँव के मसल्स, हाथ के मसल्स, हमारे मुंह के मसल्स जो हम बोल रहे हैं वो सारे हमारे कंट्रोल में, हमारी उंगलियां, ठीक है, सभी चीज़ें. लेकिन कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं भी होती हैं, तो वो हम इनवॉल्यूंटरी बोलते हैं उन मसल्स को. ओके, तो वॉल्यूंटरी मसल्स आर दोज विच आर अंडर अवर कंट्रोल. ओके, so here students 17 questions are completed. Okay, now what are floating ribs? बेटा रिब्स टोटल 12 पेयर होते हैं. रिब्स के कितने होते हैं? 12 पेयर. अब उसमें से क्या है, पेयर ऑफ रिब्स दैट आर नॉट अटैच्ड टू द ब्रीस्ट बोन आर नॉन एज फ्लोटिंग रिब्स. अब नीचे के जो पेयर ऑफ रिब्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो जो होता है ना, वो हमारे बैकबोन से अटैच्ड नहीं होता.
बैकबोन से अटैच्ड होता है, लेकिन हमारे ब्रीस्ट बोन से अटैच नहीं होता। जो सामने में हमारा स्टर्नम होता है, स्टर्नम जिसको हम ब्रीस्ट बोन बोलते हैं, वो काफ़ी छोटा होता है साइज में। आपने देखा होगा सामने की तरफ जो हड्डी होती है जिसमें रिब्स अटैच्ड होते हैं वो काफ़ी छोटा होता है, और बैकबोन जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है। जितने रिब्स हैं हमारे वो सारे बैकबोन से तो जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन जो पेयर ऑफ रिब्स नीचे की तरफ आते हैं वो बैकबोन से जुड़े रहते हैं, लेकिन हमारे आगे की तरफ जो स्टर्नम है, जो ब्रीस्ट बोन है स्टूडेंट्स, उससे नहीं जुड़े होते। इसलिए यहाँ पर उनको फ्लोटिंग रिब्स इसलिए कहा जाता है। तो सवाल ही यही है कि फ्लोटिंग रिब्स किसको कहा जाता है, व्हाट आर फ्लोटिंग रिब्स? तो पेयर ऑफ रिब्स दैट आर नॉट अटैच्ड टू द ब्रीस्ट बोन, हमारे आगे की तरफ जो छाती में हड्डी होती है उसमें दो पेयर ऑफ रिब्स जो है वो अटैच्ड नहीं होते, इसलिए हम उसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। What is the nervous system made up of? नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो कैसे बना हुआ होता है? तो नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है ये तीन चीज़ मिलकर के नर्वस सिस्टम बनाती है स्टूडेंट्स। नाउ 20th नंबर क्वेश्चन, हाउ डू आईलिड्स हेल्प्स द आईबॉल्स? आईलिड्स आईबॉल्स को कैसे हेल्प करती हैं? आईलिड्स प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम इंजरी। जो आईलिड होती है स्टूडेंट्स, हमारे आँख जो हम बंद करते हैं, हम बोल सकते हैं हमारा जो शटर होता है आई का, वो आईलिड्स होते हैं। शटर हम बोल सकते हैं हमारे आईज का, वो हमें प्रोटेक्ट करती है बहुत सारी इंजरीज से। ठीक है, रात में भी हम आँख जो बंद करते हैं स्टूडेंट्स, आईलिड्स हमारे आँख के ऊपर कवर बनाते हैं, तो हमारा आँख बचा हुआ रहता है। कुछ भी चीज़ें गलती से हमारी आँख की तरफ आ रही होती है तो हम तुरंत आँख बंद कर लेते हैं, हमारे आईलिड्स जो है वो डाउन हो जाते हैं। ओके, तो आईलिड्स प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम इंजरीज। नाउ डिफाइन स्टिमुलस। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, सपोज आप किसी ने एसी चलाया आपके घर पे, अभी किसी ने एसी चलाया, तो आपको पता चल जाएगा कि एसी चल रहा है। बेटा पता चलेगा कि नहीं चलेगा? आपको बिल्कुल चलेगा, आप डिटेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही एसी चलेगा आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और ये चेंज हुआ आपके इन्वायरमेंट में स्टूडेंट्स। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डाउन होना, इट्स अ चेंज इन द एनवायरमेंट, और उस चेंज को आपने तुरंत डिटेक्ट कर लिया। आपको तुरंत पता चल गया कि ये कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, कुछ बदलाव हुए हैं, ये टेम्परेचर डाउन कैसे हो गया। अब आप देखोगे एसी की तरफ, आपको पता चल जाएगा एसी चालू हुआ। तो यही है स्टूडेंट्स, स्टिमुलस इसी को बोलते हैं। कोई भी चेंज जो इन्वायरमेंट में हो, और कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उस चेंज को डिटेक्ट कर ले, तुरंत उसको पता चल जाए कि ऐसा चेंज हुआ, उसको स्टिमुलस कहा जाता है। तो स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एनवायरमेंट और एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऐसा चेंज जो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। ओके, सो ये थोड़ा सा, और ये डिटेक्शन हम कैसे करते हैं? ड्यू टू द हेल्प, बाय द हेल्प ऑफ आई थिंक सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसी की मदद से हम सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्किन ना होता तो हम टेम्परेचर को कैसे डिटेक्ट कर पाते स्टूडेंट्स? तो स्टिमुलस जो ऑर्गेनिजम्स डिटेक्ट कर रहे हैं वो ड्यू टू सेंस ऑर्गन। तो हमारा क्वेश्चन वो नहीं है, हमारा क्वेश्चन है स्टिमुलस को डिफाइन करना। तो स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। Okay students, now the next question is write the names of different parts of an eye. आई के डिफरेंट पार्ट्स का नेम्स बताना है आपको। सो हियर व्हाट इट्स कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व्स आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन आई। ये सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, कॉर्निया जो है ना वो ट्रांसपेरेंट लेयर है हमारे आँख का, जो हमें दिखाई नहीं देता, ट्रांसपेरेंट है। जैसे कांच होता है ना, वैसे ही वो कांच नहीं, ग्लास स्टूडेंट्स, ग्लास कैसे ट्रांसपेरेंट होता है पूरा, वैसे ही ये कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो हमारे आँख के ऊपर लगा हुआ है, वो हमें नहीं दिखाई देता। आइरिस, तो आइरिस जो है वो हमारा कलर्ड पार्ट है आई का, ठीक है, जो सबको को दिखाई देता है। जैसे ब्लू होता है किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है स्टूडेंट्स, तो आइरिस वो होता है। अब प्यूपिल स्टूडेंट्स, प्यूपिल जो है ना वो एकदम आइरिस के बीचों बीच एक काला रंग का डॉट होता है। बहुत ज्यादा गौर से देखोगे अपने आप को तो आपको प्यूपिल दिखाई देगा अपने आंख में।
जो कलर्ड, जो हमारे में जो कलर्ड स्ट्रक्चर है आई का, उसके बीचों बीच में एक छोटा सा गोल अपर्चर आपको दिखाई देगा जो बिल्कुल ब्लैक रंग का होगा, वो स्टूडेंट्स प्यूपिल होगा। फिर उसके अंदर स्टूडेंट्स, अब आई के अंदर वो ऑलरेडी आपको दिखना नहीं है, वहां लेंस होता है, फिर लेंस के पीछे रेटिना होता है, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स होते हैं स्टूडेंट्स, जो हम देखते हैं उस चीज को ब्रेन तक पहुंचाने के लिए स्टूडेंट्स ऑप्टिक नर्व भी बोलते हैं। तो देयर आर टोटल आई थिंक 6 parts: cornea, iris, pupil, lens, retina and optic nerves. You have to write these 6 names, okay, whenever asked by question paper. Now the next slide. What are sensory nerves? Sensory nerves carry messages from the sense organs to the brain or the spinal cord. सेंसरी नर्व्स क्या है? तो सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स है स्टूडेंट्स जो बॉडी पार्ट से मैसेजेस को लेते हैं और या तो ब्रेन तक पहुंचाते हैं डायरेक्टली, या तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते थे, फिर स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक ले जाता है। तो सेंसरी नर्व्स जो है वो सेंस ऑर्गन से लेकर के ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को पहुंचाते हैं। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन व्हेन हिज ब्रेन डजंट रिसीव एनफ ब्लड? अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन में अच्छी तरीके से ब्लड का सप्लाई स्टूडेंट्स नहीं होगा तो क्या होगा? तो वो पर्सन बेहोश हो सकता है स्टूडेंट्स। अ पर्सन कैन फेंट। फेंट का मतलब स्टूडेंट्स बेहोश होना। अ पर्सन कैन फेंट इफ द ब्रेन डज नॉट रिसीव एनफ ब्लड। अगर ब्रेन में एनफ ब्लड जितना चाहिए उतना नहीं पहुंचेगा तो जो पर्सन है वो बेहोश हो सकता है, और अगर ये स्थिति और गंभीर हुई तो जान का खतरा भी उस व्यक्ति को हो सकता है। लेकिन बेहोश होना तो निश्चित है, बेहोश तो वो हो ही जाएगा अगर उसके ब्रेन में सही अमाउंट ऑफ ब्लड ना पहुंचा तो मैंने क्वेश्चन ये पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ध्यान देना, मैंने निकाला है इस क्वेश्चन को आपके बुक में से। व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन व्हेन हिज ब्रेन डज नॉट रिसीव एनफ ब्लड? अ पर्सन कैन फेंट इफ द ब्रेन डज नॉट रिसीव एनफ ब्लड। ओके, सो the next question is 25th number. Name 2 food items rich in iodine. स्टूडेंट्स, आयोडीन क्यों खाया जाता है? आपको पता ही है कि एक हमारे में डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है जिसका नाम है गॉइटर। गॉइटर में जो हमारा थायराइड ग्लैंड है स्टूडेंट्स वो पूरी तरह से स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि आपके शरीर में आयोडीन की कमी होती है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा आपको कि आप कोई 2 फूड आइटम्स का नाम बता दो जो आयोडीन, जिनके अंदर आयोडीन नेचुरली मिलता है। सो आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो टाटा नमक आता है, और भी बहुत सारे नमक आते हैं, ठीक है, तो उसमें आयोडीन डाला जाता है उस नमक में, ताकि आप रेगुलरली ले और आपको गॉइटर जैसा प्रॉब्लम ना हो। और साथ में स्टूडेंट सी फूड स्टूडेंट्स एक नॉन वेजिटेरियन फूड है और हमारे यहाँ नहीं, दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। हमारे यहाँ कोस्टल एरियाज में लोग खाते हैं, बट हमारे देश में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन नहीं है। लेकिन दूसरे देश में सी फूड रेस्टोरेंट आइटम भी है, हमारे यहाँ भी है लेकिन कम जगहों पर। सो सी फूड इज़ अ नॉन वेजिटेरियन आइटम और इसमें नेचुरली आयोडीन मिलता है। तो आयोडाइज सॉल्ट एंड सी फूड आर द 2 फूड आइटम्स दैट आर रिच इन आयोडीन। नाउ स्टूडेंट्स, डिफाइन वेक्टर। वेक्टर्स क्या है? ये स्टूडेंट्स अब हमारा जो है वेक्टर्स ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है जो जर्म्स को फैलाते हैं। एक बीमार पर्सन को के पास से जर्म्स लेकर के एक हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उस हेल्दी पर्सन को भी बीमार बना दे, ऐसे एनिमल्स को हम वेक्टर्स बोलते हैं। और इसमें सबसे जो प्रखर वेक्टर है, जो सबसे ऊपर जिसका नाम आता है, वो मॉस्क्यूटो है स्टूडेंट्स। मॉस्क्यूटो ऐसा बहुत काम करते हैं। तो एनिमल्स दैट स्प्रेड जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अनदर होस्ट मीन्स अनदर हेल्दी पर्सन, ओके, आर नॉन एज वेक्टर्स। उनको वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है, हेल्दी को भी बीमार बना देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द लास्ट स्लाइड ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स एंड द 27th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज डिजीज? डिजीज क्या होता है स्टूडेंट? डिजीज इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन नहीं होता, एबनॉर्मल कंडीशन होता है। बिल्कुल सही कुछ नहीं चल रहा होता है इस कंडीशन में। एक या एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो फंक्शन नहीं करते, सही से काम नहीं करते बॉडी में, जिसके वजह से हमें
अच्छा नहीं लगता है अंदर से, बिकॉज हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते ऐसे कंडीशन में। तो ऐसे जो एबनॉर्मल कंडीशन स्टूडेंट्स, उसको हम डिजीज बोलते हैं। ओके, सो द 20th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज मैल न्यूट्रिशन। अब मैंने जो फोटो लिया है स्टूडेंट्स, इट इज टोटली डिपेंड ऑन मैल न्यूट्रिशन। हम आपको बता दें, हम बहुत नसीब वाले स्टूडेंट्स कि हम न्यूट्रिशन के कमी के शिकार बिल्कुल भी नहीं है। मैल न्यूट्रिशन हम शिकार नहीं है, लेकिन भारत ही मैल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा शिकार है। हमारा देश मैल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा शिकार है। हमारे देश में ऐसे कितने बच्चे, मैंने तो एक का फोटो लिया, मुझे इंटरनेट पे बहुत फोटोज मिले थे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसे फोटोज देख चुका हूँ जो देख के आप डर जाओ, इसलिए मैंने ऐसी फोटोज, मैंने सबसे अच्छा फोटो लगाया है जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो देखने से। इस तरह के बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स जिनमें न्यूट्रिशन की इतनी कमी हो जाती है, इनमें मसल्स नहीं है, स्केलेटन दिख रहा है लेकिन ये जिंदा है स्टूडेंट्स। ये बच्चा मैल न्यूट्रिशन इसको कहते हैं, जिसमें अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों आता है। मैल न्यूट्रिशन का मतलब साफ है, या तो आपको न्यूट्रिशन की कमी है या तो आपके पास न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की कमी जो है, अंडर न्यूट्रिशन जो है स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा है भारत में। तो मैल न्यूट्रिशन रेफर्स टू बोथ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन, दोनों, अंडर न्यूट्रिशन भी और ओवर न्यूट्रिशन भी। नाउ स्टूडेंट्स, द 29th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ गोइटर। तो हमने अभी डिस्कस किया था जब हम आयोडीन के बारे में बात कर रहे थे, तो कि जो मेन सिम्टम है गोइटर का, वो थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक। हमारे गले में एक ऑर्गन होता है अंदर में जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं। आयोडीन की कमी से ये ऑर्गन फूल जाता है और स्वेल कर जाता है, पूरी तरह से सूज जाता है। तो द मेन सिम्टम ऑफ गोइटर इज द स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक। अब स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। आज के समय में तो इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग इम्यूनिटी बाय वैक्सीन, किसी व्यक्ति को वैक्सीन के द्वारा इम्यूनिटी देना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ओके, तो अभी हम इम्यूनाइजेशन का ही इंतज़ार कर रहे हैं कोरोना के लिए कि कोई वैक्सीन आए और लोगों को वो वैक्सीन मिले, ताकि उनके अंदर कोरोना से लड़ने की एंटीबॉडी, कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी तैयार हो। तो वो जो प्रोसेस होता है जिससे वैक्सीन के द्वारा किसी व्यक्ति के अंदर में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है स्टूडेंट्स, जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाए बाय वैक्सीनेशन, उसे हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। देन all the 30 very short question answers are done, they are completed. Okay, now we will meet in the next part soon. Okay, next week I think. Goodbye Vinayans. Okay, just smile like this smiley I had put here, just smile like this smiley and we will meet. Thank you so much my dear students.